Hello and welcome back, dear children. Welcome to another session of Prabha's classes where my children are going to study about the chapter Garbage in, Garbage out. In this chapter, we shall learn about the importance of not throwing garbage. Okay, so my children from class 6 are very much excited to learn this chapter, isn't it? Throughout this video, what are we going to study? I'm putting it up in the gist. Okay, children, we are firstly going to study the question and answers. Okay, question and answers from the chapter Garbage in, Garbage out. And your ma'am, your Prabha ma'am, will make sure that my children will get all the chapters. Everything that is there in the chapter has been compiled up in this particular video. You will also learn the question and answers and also the concept of the chapter. My dear children, after having watched this video, I make sure that you people need not to study the other part of your book. Okay, I will try to compile everything, every possible thing that is there in chapter Garbage in, Garbage out. Okay, so let's start with the first topic, that is what do you mean by composting. Okay, before telling you what is composting, I just want to highlight the meaning of the word garbage. Okay, what do you mean by garbage actually? It is anything that is unwanted or useless. Okay, unwanted or useless. Okay, that we are going to throw is known as garbage. Now the first question that is hitting up your head is what is composting, isn't it? Composting means the process. All right, that is very very important from this chapter. So let us study the answer as well. All right, the garbage containing plant and animal waste, waste of food when left as in pits or heap is acted upon by bacteria, fungus like organism, causing rotting lead to the formation of manure. It is conversion of complex molecule into simple molecule which can be used by the plant for growth and development. Thus rotting and conversion of organic material into manure is called composting. तो मुझे पता है कि मेरे बच्चों के एकदम सिर के ऊपर से गए ये चीज, इजंट इट? तो अब आपकी प्रभा मैम क्या करेगी कि आपको इसे सिंपल वे में बताएगी ताकि आपको ये सारे वर्ड इतने क्लमजी और इतने टफ ना लगे। ठीक है, क्या होता है कि बच्चों, जो किचन का वेस्ट होता है, ठीक है, किचन वेस्ट जो होता है प्लस जो ड्राई लीव्स होते हैं, ओके, ड्राई लीव्स होते हैं, उन सब क्या है, वो सब चीज क्या है, वो सब ऑर्गेनिक चीज है। और जो हमने वेस्ट किया है, फूड खाने के जो वेस्ट किया है, जो एनिमल ने एक्सक्रीटा दिया है, वो सब क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इजंट इट? मतलब ये these substances are biodegradable in nature. Biodegradable मतलब क्या है? Bio प्लस डिग्रेड। ओके, दैट मीन्स बायो प्लस डिग्रेड मतलब बायो मतलब बायोलॉजिकली प्रोड्यूस हुआ है, नेचुरली प्रोड्यूस हुआ है, और वो डिग्रेड हो सकता है जब उसे हम सॉइल के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस और या ऐसे वेस्ट मटेरियल जो हमारे यूज में नहीं है पर वो सॉइल के अंदर हम उसे रखें तो वो डिग्रेड हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक गड्ढे खोद के उसमें डालते हैं और ऊपर से फिर मिट्टी से ढक देते हैं, तो क्या होता है कि वो 20 से 25 दिन के अंदर एक मैन्योर जैसा बन जाता है। ठीक है, मैन्योर जैसे बन जाता है मतलब कोई खाद या ह्यूमस विटेल, इट विल बी वेरी न्यूट्रिशियस इन नेचर एंड इट विल टर्न इनटू अ मैन्योर लाइक सब्सटेंस। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज नॉन एज कंपोस्टिंग। ओके, द प्रोसेस
बाय विच द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लिए उसको हमने ये गड्ढे में डाले, और उसके बाद 20 से 25 दिन बाद जो ये एक न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन या मैन्योर में चेंज हुए, ये सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग का क्या फायदा है, हम वेस्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं। नाउ दिस मैन्योर विल एक्ट एज अ एक्सीलेंट प्लांट न्यूट्रिएंट, और जब हम इसे कोई प्लांट को उगाने में यूज करेंगे तो प्लांट हमारे बहुत अच्छे से फल या फूल देंगे। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली इन दिस प्रोसेस इज द complex substances that is present in the biodegradable waste will be broken down by bacteria present inside the soil। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर या इस वेस्ट में, वो क्या करते हैं, इस वेस्ट को, इस कचरे को खा खा कर उसको सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। और वो सिंपल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो मैन्यूर है, that can be very easily utilized by the plant for their growth and development। ठीक है। तो आई होप मेरे बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से, बहुत 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 अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, व्हाट डू वी डू टू यूजफुल कंपोनेंट दैट इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑफ द गार्बेज। तो जो गार्बेज है बच्चों, उसके यूजफुल कंपोनेंट बेसिकली क्या है, उसके यूजफुल कंपोनेंट बेसिकली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है। There are two type of components in garbage, one are useful। वो garbage means waste है, garbage means ऐसे सब्सटेंस है जो यूज ही नहीं होते। लेकिन अगर हम आसान वे में बोले तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, बाद में जाके हम उसे ह्यूमस बना सकते हैं या मैन्योर बना सकते हैं। मतलब आपको बोले क्या, इज देयर एनी यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन गार्बेज, देन दैट इज व्हाट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ओके। So, generally useful components of garbage are used to make compost। तो हमने पढ़ा था कंपोस्टिंग का प्रोसेस। तो ये जो मैन्योर आपकी मैम ने आपको बताया, अभी अभी जो मैम ने आपको मेंशन किया मैन्योर, ठीक है, दिस मैन्योर कैन आल्सो बी नोन एज कंपोस्ट। ओके। जो सब्सटेंस आफ्टर बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, जो सिंपल सब्सटेंस बनते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, हम उसे कंपोस्ट भी कह सकते हैं। ओके, दे हैव अल्टरनेटिव नेम। यू कैन टेल manure, you can call it humus, you can call it compost। Okay, and compost are usually developed near landfills। ठीक है, कंपोस्ट हम एक बड़े बड़े जो एरिया होते हैं जो यूज में नहीं होते उन्हें हम लैंडफिल कहते हैं, और ऐसे बड़े बड़े जो खाली मैदान होते हैं उसमें हम कंपोस्ट को यूजली बनाते हैं। लेकिन हम अपने घर पे भी छोटा सा कंपोस्ट बना सकते हैं। ओके, सो हाउ टू प्रिपेयर the household compost? Okay, we will be studying out here step by step. For preparing compost, waste material like fruit and vegetable peel, eggshell, tea leaves, waste food, dry leaves, newspaper etc should be dumped in a pit। pit मतलब क्या है, गड्ढा। इसमें हम सारे ये किचन के वेस्ट को क्या करते हैं, डाल के उसको ढक देते हैं। द पीट इज कवर्ड विद द सॉइल। देखो पीट कवर हो गया अब सॉइल से। आफ्टर 20 to 25 डे ऑब्जॉर्ब द गार्बेज। आफ्टर 20 से 25 दिन के बाद अब हम जो ये कचड़े थे सॉइल के अंदर उसको ऑब्जर्व करेंगे। इफ द गार्बेज इज नॉट रॉट, टर्न ब्लैक, सॉरी, इफ द गार्बेज इज रॉट, ठीक है, इट विल टर्न ब्लैक इन कलर। ओके, गार्बेज अगर रॉट हो जाते हैं मतलब ये क्या हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, वो कलर चेंज करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कंपोस्ट हैज फॉर्म। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन मिला कि आपको कैसे पता चलेगा दैट योर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैज टर्न्ड इनटू कंपोस्ट, तो क्या बोलेंगे हम, देयर विल बी अ कलर चेंज सीन। ठीक है, एंड दैट कलर विल बी व्हाट इन कलर, ब्लैक इन कलर। ठीक है, एंड
नो फाउल स्मेल इज इमिटेड। तो कचरे से तो गंदा स्मेल आना चाहिए, तो 20 से 25 दिन बाद अगर वो कंपोस्ट में बदल जाते हैं तो कुछ भी गंदा सा स्मेल नहीं प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट एंड कंपोस्ट इज रेडी टू यूज। ठीक है, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा गार्बेज एकदम कंपोस्ट में चेंज हो चुका है एंड हम उसे प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, now coming to the next question बच्चों, okay, coming to the next question out here is the third question. We should not add waste composting salt, pickle oil and vinegar, meat and milk product in vermicomposting pit to feed the red worm. Why is that? तो यहाँ पे बच्चों एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज वर्मी कंपोस्टिंग। अभी तक तो आपकी प्रभा मैम ने आपको बस कंपोस्टिंग के बारे में बताया है। तो नाउ माय चिल्ड्रन विल आस्क मी, मैम व्हाट डू यू मीन बाय वर्मी कंपोस्टिंग? ओके, वर्मी composting is also a type of composting itself, but this kind of composting is done with the help of earthworm। जो मैंने आपको पहले वाला कंपोस्टिंग का प्रोसेस बताया बच्चों, उसमें हमने कोई एक्सटर्नल अर्थवर्म नहीं डाले हैं। लेकिन इस टाइप के कंपोस्टिंग में क्या करेंगे, हम वही करेंगे, गड्ढे खोदेंगे, गार्बेज डालेंगे और उसे सॉइल से ढक देंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा कि जब हम गार्बेज को डाल रहे होते हैं तब हम अर्थवर्म भी एक्सटर्नल सोर्स से यहाँ पे डालते हैं। गार्बेज के साथ साथ हर एक पॉइंट में हम earthworm को या रेड worm बेसिकली वी टेल, ओके, यू कैन टेल इट earthworm और रेड worm, उसे भी हम एक गार्बेज ये जो पीट है उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, तो बच्चों इससे अब मेरे बच्चों मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, उनके मन में सवाल तो बनता ही है कि मैम लास्ट टाइम तो हमने कोई अर्थवर्म यूज नहीं किया बट अब हम क्यों कर रहे हैं? यस, सो अर्थवर्म क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है हु फीड्स अपॉन द गार्बेज, ओके, एंड देन what happens is it will just give throughout its excreta, and these excreta of earthworm is very 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 nutritious for the plant। क्या होता है कि जो earthworm के बिना, ठीक है, earthworm से क्या होता है, प्रोसेस फास्टर होता है, एक तो फास्ट हो जाता है और नेक्स्ट क्या होता है, मोर न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, यू कैन राइट आउट दिस पॉइंट, ऑल राइट। ठीक है, क्या होता है, मोर न्यूट्रिशियस हो जाता है, जो कंपोस्ट होता है वो मोर न्यूट्रिशियस हो जाता है एंड द प्रोसेस विल आल्सो बी फास्टर। ओके, ऑल राइट, ओके, लेट मी चेंज दिस। ओके, नाउ गॉट द पॉइंट, मतलब मेरे बच्चों को समझ में आ गया है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्थवोम क्यों यूज करते हैं। हम एक्स्ट्रा से ऑर्थवोम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारा प्रोसेस क्या हो जाए, फास्टर हो जाए, और जो हमारा कंपोस्ट होता है बच्चों वो और न्यूट्रिशियस हो जाए प्लांट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जब हम ऑर्थवोम को यूज करते हैं तो उस कंपोस्ट में जो वेस्ट मटेरियल है उसमें हमें ध्यान रखना है कि सॉल्ट, ऑयल, पिकल्स, विनेगर, मीट एंड मिल्क ना हो। क्योंकि क्या होता है, the addition of substances such as salt, oil, pickle, vinegar, meat and milk products to vermicomposting peat causes growth of disease causing small organism. They may cause harm to red worm and hinder the preparation of vermicompost। तो क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि हमने क्या यूज किया है, हमने अर्थवर्म यूज किए हैं, इजंट इट, हमने अर्थवर्म यूज किए हैं। और अर्थवर्म को जो डिजीज कॉजिंग वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर पैदा होते हैं तो वो उसे किल कर सकते हैं। इसीलिए ताकि हमारा कंपोस्ट खराब ना हो, ताकि हमारा जो अर्थवर्म है हमने जो एक्सटर्नल सोर्स से लिए हुए हैं वो डेथ, उनके डेथ ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम
उस टाइप के चीजों को नहीं डालते। लेकिन अब आप मुझसे पूछोगे मैम लास्ट वाले जो कंपोस्टिंग का मेथड था उसमें तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि हमें ऐसे कुछ नहीं डालना चाहिए, इजंट इट? लेकिन हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम हमारा मेन कंसर्न है यूज ऑफ क्या, earthworm टू मेक द कंपोस्ट। मतलब हमें ये वाले जो कंपोस्ट है पिछले वाले के लाइक कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट चाहिए। ओके, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर not using such things. Okay, now coming to the next question, children. Okay, how can the non useful component be reused? All right, now we talked about the useful component and we made the use of them, that is the biodegradable waste part. तो अब कचड़े में क्या होता है, एक यूजफुल कंपोनेंट होता है और एक नॉन यूजफुल कंपोनेंट होता है। यूजफुल कंपोनेंट का तो हम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बना लेंगे, लेकिन नॉन यूजफुल कंपोनेंट का हम क्या करेंगे? द नॉन यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज आर सेपरेटेड बाय सफाई कर्मचारीज। This separated non-useful components of the garbage is spread over landfill and then covered with a layer of soil. Once the landfill is completely full, it is usually converted into a ground for the next 20 years or so. No building is constructed on it. ये एक बहुत ही important concept है बच्चों, जो हम एवरीडे जो प्लास्टिक वेस्ट हम जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उस प्लास्टिक वेस्ट का क्या होता है एट द एंड? क्या होता है? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उन्हें जलाने से भी क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन आ जाते हैं। उन्हें पानी में फेंकने से भी वाटर पोल्यूशन हो जाते हैं, सॉइल में फेंकने से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि अब हम क्या करें उस प्लास्टिक वेस्ट को। सो व्हाट वी डू, हम एक बड़े से ग्राउंड में जो कि यूज नहीं है, एकदम शहर से एकदम बाहर दूर दूर, ठीक है, तो उस ग्राउंड में जाके वो कचड़े को पूरा फैला के छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा सॉइल से ढक देते हैं। उतना ज्यादा पिट नहीं करते, बस हल्का से इसको फैला के छोड़ देते हैं पूरा, ठीक है, और ऊपर से सॉइल डाल देते हैं और इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ताकि ये खुद से डिग्रेड हो जाए। 10 साल, 20 साल, 30 साल, ज्यादा टाइम में तो ऑब्वियसली कुछ भी डिग्रेड हो सकता है, इजंट इट? कंप्लीटली डिग्रेड तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये मिट्टी में मिल जाएगा। दैट इज नॉन एज what? Landfill. Okay, this is the process known as landfilling, and this is done for non biodegradable और non useful component। समझ में आया? अब मैं बच्चों को क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है करने के लिए। तो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए वो वेस्ट को पूरा कचरे वाले जो जिस वेस्ट को हम कचरे वालों को देते हैं रोज सुबह सुबह, इजंट इट? दैट वेस्ट आर टेकन टू आउटस्कर्ट ऑफ द सिटीज इन लाइक वैकेंट लैंड, ठीक है, और उस वैकेंट लैंड में जाके पूरा उसको स्प्रेड करके उस पे थोड़ा सॉइल ऊपर से लेयर से कवर कर देते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्योंकि हम कभी कभी घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि कितना सारा लैंड है जो यूज नहीं है, जिसमें जंगल है, जिसमें कुछ भी नहीं है, बंजर जमीन है। तो ऐसे जमीन में हम ये सब करते हैं। जहाँ पे एनिमल्स या ह्यूमंस होते हैं वहां पे हम ऐसे नहीं करते, ठीक है। Now coming to next बच्चों, question 5, why should we not burn dry plant leaves and husk? Why? What is the best way to get rid of them? Okay, दिस इज आर एंड एन। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमें ड्राई प्लांट है, ड्राई लिप्स है, ओके, और हस्क है, ठीक है, वो सबको क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि अब देखो कि हमारे पास बहुत सारे वेस्ट है, बहुत सारे ड्राई लिप्स है, तो उसे हम जला सकते थे, इजंट इट? लेकिन हमें उसे नहीं जलाना, क्यों? Because burning of dried leaves, husk and other plant part produces smoke and gases that are harmful to our health. Dried leaves, husk, and other plant part can be used for preparing
कंपोस्ट, ठीक है। तो हमें क्या होगा, गैस और स्मोक प्रोड्यूस होगा, तो उसे क्या होगा, एयर पोल्यूशन कॉज होंगे, और एयर पोल्यूशन क्या है, हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। इसीलिए हमें ड्राई प्लांट एंड लीव्स को नहीं जलाना चाहिए, और ऊपर से प्लास्टिक वेस्ट को भी इसीलिए नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, that is question 6. List waste product produced by an industries. तो इंडस्ट्री से कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मेरे बच्चों मुझे बोलेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं इंडस्ट्री से, ठीक है। Waste product produced from industry are chemicals, smoke, ash, empty containers such as glass bottle, plastic articles, wrappers, ठीक है, plastic bags, broken things, iron और द मेटल्स, ठीक है। ये सब याद करके रखना है। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री से क्या क्या प्रोड्यूस होता है, हमें वो तो पता है। स्मोक, एस, केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, कचड़े, प्लास्टिक बैग्स प्रोड्यूस होते हैं, बॉटल्स, रैपर्स, पीपर्स, सब कुछ प्रोड्यूस होते हैं, इजंट इट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल हैपन इफ द गार्बेज इज लेफ्ट ओपन इन बिन। तो हम एक गार्बेज को, ठीक है, कचड़े में ओपन रखते हैं, ऐसे ही डाल के छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उससे गंदा सा स्मेल प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसके ऊपर हम अगर ढक्कन लगाए तो क्या होगा, हमें कोई गंदा सा स्मेल नहीं आएगा, isn't it? So देखते हैं। Garbage will rot and bad smell will spread all around the surrounding. Garbage will become breeding spot for flies, mosquito and other diseases causing organisms, ठीक है। तो क्या क्या होगा, फर्स्ट तो बैड स्मेल आएगा, क्योंकि ये गार्बेज रॉट हो जाएगा, इजंट इट। तो रॉट मतलब क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, सड़ने के बाद बैड स्मेल आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो कवर हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या है, अगर हम इसे खुला रख देंगे, एक गार्बेज के कंटेनर को हम खुला रखते हैं, ठीक है, इसको ढक्कन लगाए बिना, तो बाहर से फ्लाइज आके कभी भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, और कभी भी निकल के आपके खाने में जाके भी वो बैठ सकते हैं। लेकिन इसको ढक्कन लगा के रखे तो आने के चांसेस बहुत कम है। ना कि फ्लाइज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें गार्बेज के बिन को ढक्कन लगा के रखना चाहिए। ड्यू टू फ्लाइज, मस्क्यूटो एंड अदर ऑर्गेनिज्म मैनी डिजीज विल स्प्रेड इन द कम्युनिटी। तो ऐसा हुआ तो मैंने बोला फ्लाइज यहाँ पे आएगा और आपके खाने में भी जाके बैठ जाएगा, तो क्या होगा, डिजीज फैलेगा, ठीक है। तो rotting garbage may cause air pollution and spread of respiratory diseases such as breathing problem। तो यहाँ पे क्या होगा, rotting garbage क्या करेगा, एयर पोल्यूशन भी कॉज करेगा, क्योंकि गंदा स्मेल आएगा, और उससे क्या होगा, हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस होगा। रेस्पिरेटरी डिजीजेस मतलब डिजीजेस रिलेटेड टू लंग्स, ओके, एज अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सच एज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टिक। तो बच्चों, प्लास्टिक इज वेरी 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 हार्मफुल थिंग, इजंट इट। क्योंकि मैंने बोला कि उसको हम डिग्रेड भी नहीं कर सकते। जैसे कंपोस्ट तो 20 to 30 days में हमारा डिग्रेड मतलब बन जाता है, इजंट इट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो कंपोस्ट में चेंज हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक को कितने लगते हैं, 20 years लगते हैं, ठीक है। फिर भी हम प्लास्टिक को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसका कुछ खास यूजेस है, वो यूज करने में इजी है, इसीलिए तो हम प्लास्टिक को यूज करते हैं ना। इसका इतना डिसएडवांटेजेस को देखते हुए भी हम प्लास्टिक को यूज करते हैं, इजंट इट। सो हमें उसका यूजेस भी थोड़ा पता होना चाहिए। नाउ फर्स्ट इज प्लास्टिक कंटेनर कैन बी यूज टू स्टोर इडेबल गुड्स, ठीक है। तो हम टिफिन बॉक्स क्या है, प्लास्टिक कंटेनर है, हम इडेबल गुड्स को रखते हैं, राइट। और goods packed in plastic bag can be taken away easily and are waterproof। तो हम कुछ भी अगर प्लास्टिक के बॉटल में रखते हैं या प्लास्टिक से किसी भी चीज को कवर करते हैं, तो वो क्या होता है, पानी से नहीं भीगता, isn't it। एंड मतलब इजी टू कैरी भी होता है एक प्लास्टिक बैग में, इसीलिए हम उसे यूज करते हैं। इजी टू कैरी एंड वाटरप्रूफ,
ठीक है। फर्स्ट इज स्टोर इडेबल गुड्स, सेकंड इज इजी टू कैरी एंड वाटर प्रूफ, थर्ड पॉइंट प्लास्टिक कंटेनर्स और आर्टिकल आर गुड लुकिंग, क्योंकि देखने में येलो ग्रीन रेड स्टील के कैसे लगते हैं, सारे एक ही कलर के ना, लेकिन प्लास्टिक के आपके पास ब्लू कलर के टिफिन होता है और आपके फ्रेंड के पास पिंक कलर का टिफिन बॉक्स होता है, इधर किसी के पास रेड होता है, सो इट लुक्स वेरी गुड एंड लाइट इन वेट ऑल्सो, हल्का भी होता है और सस्ता भी होता है, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। Now fourth is plastic containers such as bottles can be used to store chemicals, हम प्लास्टिक कंटेनर्स में कोई केमिकल भी यूज या स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नो केमिकल इफेक्ट्स ऑन प्लास्टिक, तो केमिकल कुछ इफेक्ट सॉरी नो केमिकल इफेक्ट्स ऑन इट, यस, प्लास्टिक को कोई केमिकल इफेक्ट भी नहीं करता, ठीक है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, और प्लास्टिक को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, मतलब उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते बच्चों, लेकिन हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं। इसका मतलब हम उसको बेच सकते हैं। जो मतलब कोई होता है कचरा लेने वाला, वो क्या करता है कि वो प्लास्टिक जो हम देते हैं उसको लेके वो क्या करता है, इंडस्ट्रीज में दे देता है, और इंडस्ट्री में जो वो जो यूज्ड प्लास्टिक था उसको फिर पिघाल के उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये गोल शेप था, अभी ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। दैट मीन्स रिसाइकलिंग इज अ गुड ऑप्शन, हम रद्दी वालों को दे सकते हैं जो प्लास्टिक है हमारे घर में वेस्ट प्लास्टिक, और वो रद्दी वाले इंडस्ट्री में जाके देते हैं और उसका फॉर्म को चेंज करके फिर न्यू बना के उसको फिर वो मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। Now coming to ninth one, what are the demerits of plastics? Demerits of plastics are plastics give out harmful gases upon heating or burning. तो merits तो पढ़ लिया, merits मतलब positives यूज, ठीक है, और डीमेरिट्स मतलब नेगेटिव, ठीक है। मेरिट्स बस बोले तो दैट इज पॉजिटिव, एंड डी अगर आगे लग जाता है तो दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो हमें बच्चों यहाँ पे जानना है कि प्लास्टिक का नेगेटिव यूज क्या है, ठीक है। प्लास्टिक का नेगेटिव यूज क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे प्लास्टिक का नेगेटिव यूज क्या है। प्लास्टिक गिव्स आउट हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग और बर्निंग, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। दिस गैसेस में कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर्स इन ह्यूमन। तो ऑब्वियसली गंदे एयर को हम अंदर ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, डिजीजेस हो जाएंगे कैंसर जैसे। Some people often fill garbage in plastic bag and throw it away in open. When stray animal look for food in this bag, they swallow plastic along with food. तो क्या होता है कि कोई लोग क्या करते हैं, सारे कचरे को प्लास्टिक बैग के अंदर भर देते हैं यहाँ पे और उसे पूरा फेंक देते हैं। तो क्या होता है, जो काऊ वगैरह या कोई एनिमल्स वगैरह आते हैं और वो इसको खाते हैं और वो प्लास्टिक को भी निगल जाते हैं, तो इससे वो एनिमल भी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, यस, बीमार भी हो जाते हैं और वो मर भी सकते हैं, कोई कोई एनिमल ऐसे प्लास्टिक खा के भी मरते हैं। द प्लास्टिक थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स एंड सीवेयर सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक तो पूरे रोड के पास वाले जो नाला जो होता है, ठीक है, ये हमारा रोड है फॉर एग्जांपल, तो इसके पास वाले जो गटर वगैरह होते हैं, तो इसमें हम लोग इसे प्लास्टिक को फेंक देते हैं। तो प्लास्टिक फेंकने से क्या होगा, ये नाले क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और यहाँ पे सारा वाटर लॉगिंग होगा, ये गंदा पानी रोड तक भी आने को स्टार्ट होगा, ठीक है। जो पैसेज ही बंद हो जाते हैं प्लास्टिक के कारण, तो गंदा पानी कहाँ से जाएगा, साइड रोड के साइड से तो गंदा पानी जाता है, इजंट इट, तो उसको हम ढक के रखते हैं ऊपर से। लेकिन अगर इसके अंदर में कोई प्लास्टिक से जो रास्ता ब्लॉक होता है तो वो पूरा रोड में आ जाता है गंदा पानी, ठीक है। अब these plastic bag can choke the drains. As a result, dirty water spills on road is causes spread of bad smell and diseases। तो मैंने जो आपको बताया, रोड साइड के जो गंदे पानी होते हैं तो वो रोड में आ जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक तो उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा है, तो मतलब रोड में आ जाने से हमें क्या होगा,
लाइक स्मेल विल बी, जो गंदा स्मेल प्रोड्यूस होगा हमें, और डिजीज भी कॉज होंगे। एंड कमिंग टू लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन बच्चों, कैन यू मेक समथिंग यूजफुल ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल? पाउडर, कंटेनर, कोल्ड ड्रिंक्स, कैन्स, प्लास्टिक बॉटल, शू बॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है बच्चों, जो हम वेस्ट है डे टू डे, हम लोग जो कार्टून फेंकते हैं, रेप रैपर्स फेंक देते हैं, कंटेनर्स फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल फेंकते हैं, पुराने प्लास्टिक के बॉटल को फेंकते हैं, उसका कुछ यूज हो सकता है क्या? हम उसे रीयूज कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट टर्म गार्बेज के जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या होता है? रीयूज। ओके, फर्स्ट इज wait a minute, okay, फर्स्ट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये तो सुना ही होगा आपने, इजंट इट? आपने तो ये तो सुना ही है कि दैट इज रिड्यूस एंड देन रीयूज एंड देन रिसाइकल। ठीक है, तो हमें ये तीन चीजों को फॉलो करना चाहिए। पहली तो हमें अपना जो कंजम्पशन है, खरीदना है, वो सब क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। अगर हमें उसके नीड हो तभी खरीदो, अगर नीड नहीं हो फेंकने के लिए मत खरीदो। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, एंड अनदर इज रीयूज। अगर हमने किसी चीज को खरीद लिया है, मतलब उसे फेंकने की बजाय उसको हम सोचेंगे कि इसको दूसरा क्या काम में लगा सकेंगे हम। ठीक है, एंड रिसाइकल, अगर हमने इसको काम में भी लगा दिया है फिर भी ये काम नहीं आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे? कचरे वाले को बेच देंगे। नहीं, कचरे वाले नहीं, मतलब जो एक आते हैं, ठीक है, लेने के लिए वो जो रिसाइकल के लिए वेस्ट होते हैं, ठीक है, उस उनको हम बेच देंगे, कबाड़ी वाले को बेच देंगे, ताकि वो जाके इंडस्ट्री में उसे दे सके। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज हम क्या कर सकते हैं? एक पाउडर के कंटेनर है, हम उसे क्या कर सकते हैं? देयर यूज डिपेंड्स अपॉन देयर साइज, शेप एंड मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। फॉर एग्जांपल, elongated metallic powder container can be used as a pencil stand to grow मनी प्लांट एक्सेट्रा। तो आपके पास कोई कंटेनर है पाउडर के, इतने बड़े पाउडर के एक डिब्बे है आपके पास, ठीक है, तो वो पाउडर अब खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर वाले हिस्से को निकाल देंगे और यहाँ पे पानी डाल के एक प्लांट को उगा देंगे। इजंट इट? तो हम ऐसे भी यूज कर तो सकते हैं, या तो हम इस कंटेनर को पेन स्टैंड भी बना सकते हैं, पेंसिल पेन यहाँ पे रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इजंट इट? प्लास्टिक कन, और इसे हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, जो कूड़े वाले होते हैं सॉरी, रद्दी वाले होते हैं, उसे भी बेच सकते हैं या दे सकते हैं फ्री में। ठीक है, और ड्रिंक कैंस, जो हम ड्रिंक करते हैं, मतलब जो कोक वगैरह जो पीते हैं, ठीक है, उसके कैन को हम क्या करेंगे? सॉर्टिंग लिक्विड लाइक ऑयल ग्रोइंग हर्बिसियस प्लांट लाइक मनी प्लांट एक्सेट्रा। तो कोक के बॉटल वगैरह को क्या कर सकते हैं? उसको हम किचन में एज अ ऑयल कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग ऑयल रख सकते हैं। एंड प्लास्टिक बॉटल्स, सॉर्टिंग लिक्विड सच एज ऑयल एंड रिसाइकल प्लास्टिक। ठीक है, कोई भी प्लास्टिक बॉटल को भी हम ऑयल रखने के लिए यूज कर सकते हैं या उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। एंड शू बॉक्स, मेकिंग स्मॉल रेड क्रॉस बॉक्स, स्टोरेज पेन पेंसिल्स एंड अदर स्मॉल आर्टिकल। जो शू के बॉक्स होते हैं, जो जब हम फ्लिपकार्ट से किसी चीज को ऑर्डर करते हैं तो हमें उसे बॉक्स में मिलता है, इसी तो उस बॉक्स को हम क्या कर सकते हैं? उसको हम छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं, रेड क्रॉस के मार्क लगा के, ऐसे ऐसे वाला ना। और उसको हम पेंसिल पेन रखने के लिए बना सकते हैं, या हम कोई उसमें कोई ड्राइंग, उसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर पेस्ट करके उसको, उस पे कुछ ड्राइंग वगैरह बना के, ठीक है, ऐसे करके तो उसको वॉल में भी चिपका सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का इतना ही बस क्वेश्चंस एंड आंसर्स था। आई होप योर चैप्टर हाफ, नॉट हाफ, लाइक लगभग आपके फुल चैप्टर ही यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि आपके जो मेन मेन टॉपिक है इस चैप्टर से मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। और आपको एक बार जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि हाँ,
प्रभा मैम ने तो ये सारे समझा दिए हैं, एंड इट इज वेरी 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 इजी नाउ, ठीक है। एंड आपको जो आंसर्स है वो भी जल्दी से याद हो जाएंगे। बाय बाय बच्चों, एंड आई होप you enjoyed the session, and we will be coming up with more such interesting videos. So please do not forget to like and subscribe my channel, and also don't forget to share. Thank you so much.